डाइट्स, वीगन डाइट, कीटो डाइट एंड न जाने और क्या क्या डाइट हम लोग करते हैं, thinking that we will probably lose weight, which we do, definitely we do. But is that weight loss a short-term procedure or a long-term loss? Can anybody tell me? I'm sure people have experienced the weight loss with diet. तो लॉन्ग टर्म में आपका कुछ फायदा होता है क्या उसमें? Have you all gained anything in the long term or short term में प्रॉब्लम्स ज्यादा हुई? यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी and a lot of problems which is internally happening and damaging, but we are not seeing from the outside. तो अभी हमें कुछ ऐसा करना है so that we internally become strong and lose weight also. तो कुछ ऐसा यूनिक थेरेपी आप लोग जानने के लिए उत्सुक है क्या? Are you curious to know something where you do not have to do any dieting? You just have to work on your internal system. And by building up that internal system through breath hold, you will lose weight or long term में आप not lose out on nutrition and nothing will be deficient in your body. So how many of us are ready to know about the unique therapy which I'm talking about, where we are strengthening the organs and losing weight as well? क्या आपको मालूम है कि हमें additional weights जो extra pounds or kgs that we gain, the reason for that is हमारा body कोई risk में, and when the body is at risk, we start gaining that extra pound. So did anybody know about this, that reason? Have you ever tried to find out why we are having this weight gain? कितने लोगों ने जानने की कोशिश की है? बहुत लोग बचपन में एकदम पतले दुबले होते हैं, and as they are in their youthful life, they start gaining weight. And post-menopause is the changes that are massive due to the hormonal imbalance in ladies. तो ये जो hormonal imbalance है, वो हम कैसे ठीक कर सकते? वो कोई डाइट से तो होने वाला नहीं है, कोई चीज से, ना एक्सरसाइज से होता है ना डाइट से होता है. अगर होता है तो बहुत थोड़ा सा हो, बट हमको अगर परमानेंटली अपना वेट स्टेबल रखना है according to the BMI index, if we want to keep that and we don't want to feel heavy, yet eat everything possible in the world that we like. तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि we can strengthen the internal system and digest just about anything. तो अच्छी digestion के लिए हमें किस चीज पे काम करना पड़ेगा? Anybody from the participants? We have to work on our, anybody from the participants? On the gut, Amrita ma'am says, gut health, metabolism. Exactly, we have to work on our metabolism. कि आप पत्थर भी खाएं तो वो भी हजम हो जाए. इतना हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो इतना होना चाहिए कि आप कुछ भी पचाने की शक्ति रखते हैं. कितने लोगों को डाइजेशन इश्यूज है यहाँ पर? I'm sure 90% of us are having a acidic body, right? और आप सभी लोगों को मालूम है एसिडिक बॉडी जब होता है, जब इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, दैट इज इवन द रीजन फॉर कैंसर. तो भयानक बीमारियां होती हैं बिकॉज योर बॉडी इज एसिडिक. तो आप ये जो यूनिक थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए. लेट्स नॉट हैव एनी डिस्टर्बेंस फॉर 1 to 1.5 hours with no pets around, no children, so that 100% you can pay attention to हम क्या बताने जा रहे हैं. ये जो यूनिक थेरेपी है जिससे आपका वेट लॉस होगा.
So if I have your permission, I would like to share the screen to give you a more insight of Ameda Shleshma Shuddhi. So let me know in the chat if I have your permission. In the meanwhile, please let me know कि आप लोग किस जगह से joined हुए हैं. From which locations you all have joined in. People are still joining in. Thank you so much, Amrita ma'am. As usual, the first one to reply, Chennai, Gurugram, Nashik, Ahmedabad. कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं है जहां से हमारे पास वेबिनार में लोग जुड़ते नहीं हैं. Thank you so much once again जुड़ने के लिए. Now I will be sharing the screen. So Ameda Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa, the correct approach to weight management and related issues. Now let's move further. Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions, and it can be corrected and balanced back to its natural state. Who is this webinar for? People who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. Weight management with Kumbha, the right way, freedom from restrictive diet plans. What will you learn in today's webinar? What is fat? Why the body creates fat? A new way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body. Let's hear from Swami Raj Vibhuji. उन्हें क्या बताना है हमें वेट मैनेजमेंट के बारे में और किस तरह आप वो एक्स्ट्रा केजीज और फ्लैश और पाउंड से मुक्ति पा सकते हैं. Thank you so much for listening to me patiently. Now I would request Anilji to please share the program. Please share the video. So I'll just tell you how we are going to. So I'll just tell you how we are going to proceed in the webinar. Please write down your name and number along with the problems that you are facing due to the excess weight. After the video, you will be presented with somebody live who will be sharing his or her journey of Ameda along with the program details immediately after the video is shared. And you can write down your questions. So we will take them up whatever is possible and what in the limited time. After that, in the webinar group, you can write down the questions and we'll answer. Thank you so much. Namaste, Swamiji. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. तो आपका वेट कौन बढ़ाता है और कौन इसको बैलेंस रखता है और कौन कम कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, who increases your weight, who can balance it
and who can reduce it? कौन करता है बताइए? कोई डॉक्टर आके कर रहा है? पड़ोसी कर रहे हैं? नहीं। गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है? नहीं। कौन कर रहा है वेट इंक्रीज और डिक्रीज या बैलेंस में रख रहा है? किसका स्ट्रेंथ है ये? जरा सोचिए, किसका स्ट्रेंथ है ये आपके शरीर का ही स्ट्रेंथ है ना, या किसी और का है? वेट को मैनेज करने की शक्ति किसकी है? आपके शरीर की है। On whose strength your body increases, decreases or manages weight? Its own strength of weight management. अगर वो कम हो गई शक्ति, if that decreases, your weight will go haywire. इधर उधर जाएगा आपका वेट। मगर आप क्या करेंगे? What will you do? You will reduce your food, restrict your diet, or eat some fat cutter. मगर आपके वेट को मैनेज करने की शक्ति जो आपके शरीर के पास में है, इसके ऊपर आप कब काम करते हैं और कैसे? जिसके कारण आपका वेट इंक्रीज होता है, द रीजन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विच योर वेट इंक्रीजेस, डू यू वर्क अपॉन दैट? तो रेस्ट्रिक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट आपको नुकसान करेगा, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट आपको एम्पावर करेगा। व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट? अमेदा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। इसका मतलब क्या? कि आपको टॉर्चर नहीं करना अपने शरीर को। जो शरीर के अंदर वीकनेसेस हैं, जो रिस्क है, उसको कम कर देना है। वीकनेसेस को पावर बना देना है, इंप्रूव, वीकनेस को हटाना है। तो आपका शरीर वेट मैनेज अपने आप कर लेगा और दोबारा नहीं बढ़ाएगा। सो इसी के बारे में एग्जांपल लेके एंड हाउ वी कैन डू इट, ये हम आगे देखेंगे। बट पे अ लिटिल मोर अटेंशन, थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड इनटू सम अदर काइंड ऑफ अ नैरेटिव। आपको ना कुछ कुछ बता रहे हैं। अच्छा, यहां तक भी बोल रहे हैं कि वेट के कारण ही डायबिटीज होती है और वेट के कारण ही ब्लड प्रेशर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। ये सब बता रहे हैं ना आपको, कहीं ना कहीं आपने सुना है। तो मुझे एक डायबिटिक बता दीजिए जो 100 साल के अंदर हमने ठीक कर दिया बाय सम काइंड ऑफ मेडिकेशन और दिस नैरेटिव। ब्लड प्रेशर एक इंसान बता दीजिए जिसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया पिछले 100 साल के अंदर बाय टेकिंग सम मेडिसिन और रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर। किसी का डायबिटीज ठीक हुआ पिछले 100 साल में? एक भी तो प्रूफ नहीं है, एक प्रूफ तो दिखाओ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक किसी का हुआ हो, थायराइड ठीक हुआ हो किसी का। जस्ट गो अ लिटिल बैक, योर ग्रैंड मदर एंड 1 जनरेशन बिफोर। आपके ग्रैंड मदर की मदर पे चले जाओ, ग्रैंड फादर के फादर पे चले जाओ। किसको थायराइड था? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज किसको था? इनफर्टिलिटी किसको था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको था? मगर आपके केस में क्या बोलते हैं? जेनेटिक है जी। तो आप तो मार्स से आए हो या दूसरे ग्रह से आए हो? एलियन हो क्या? तो ये जेनेटिक कहां से है? तो आप लोग बहुत समझदार लोग हो। क्यों? क्योंकि आप लोग इंडियंस हैं, भारतीय हो ना, इंडियन ही हो ना। तो आप लोग समझदार लोग हो। अब आपको मानना पड़ेगा कि आप ज्यादा समझदार हो, नहीं तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे इसको।
सो अलार्म रेज किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये गलत है, मगर इसको कम करने का कोई तरीका हमें नहीं मिलता। ये क्यों हो रहा है ये भी हमें नहीं मालूम है। डायबिटीज क्यों हो रही है, पीसीओडी क्यों हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है, थायराइड क्यों, हमें नहीं मालूम। आप जाके गूगल कर लो, सारी एलोपैथी की किताबें पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली आखिर में क्या आता है, वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। अगर आप जानते ही नहीं है तो ठीक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली देयर इज नो प्रूफ, एक बंदे की भी प्रॉब्लम नहीं जा रही, एंड एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अलार्मिंगली बढ़ रहा है, मेंटल इश्यूज एपिडेमिक बन चुका है। तो हम तो ठीक कर ही नहीं रहे कुछ भी क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है क्यों होता है। आपको लगता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े साइंटिस्ट, नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े कुछ भी नहीं होते। इंसान तो 6 फीट 60 फीट ज्यादा से ज्यादा इतने का होगा, और कितना होगा, 50 फीट का थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर खड़ा करके समझदार नहीं होते, कपड़े पहन के आप समझदार नहीं हो बन जाते, नहीं तो सभी कपड़े पहन के समझदार बन जाते, किसी को अपने ऊपर काम करने की जरूरत नहीं। तो ये जो ना फॉल्स सिविलाइजेशन का नैरेटिव आप हटाइए पहले, कम बैक टू योर रूट्स, अपनी जमीन पे वापस आ जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। आप सभी समझदार हैं और आप सभी समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात, ये किन किन लोगों के लिए प्रोग्राम है, किन किन लोगों के लिए है? जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, बिना डाइट के वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और उनका वेट दोबारा ना बढ़े, ऐसी इच्छा है जिनकी। और कौन लोग करना चाहते हैं? हु वांट टू इंप्रूव देयर मेटाबॉलिज्म, अपने शरीर में भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता आपके शरीर की ज्यादा बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम के जो भी है, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, है ना, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, इन सब में सिम्टम से राहत चाहते हैं। Who want to improve their life in terms of functionality, ज्यादा लाइफ में काम कर सकना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, उनके डिप्रेशन का जाना, मेंटल इश्यूज जो भी चाहते हैं कि उनके मेंटल इश्यूज चले जाएं, इंक्लूडिंग केसेस लाइक पार्किंसन। फिर जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग भी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, बाहर से खा के आपके शरीर की इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, ठीक है ना। इम्यूनिटी इन द लास्ट 100 years हैव गॉन डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अपनी इम्यूनिटी, इम्यून स्ट्रेंथ, डिजीज का रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी इन्फेक्शंस का भी अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो चाहे और तरीके के इन्फेक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर उससे जल्दी रिकवर हो, है ना, जो अपनी रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आगे चल के उनको प्रॉब्लम आए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, या प्रॉब्लम आए ही नहीं, प्रिवेंटिव इम्यूनिटी की तरफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। अच्छा, किसी का कोई सर्जरी हुआ, कोई सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़ा, या फिजिकल डिफॉर्मिटी और फिजिकल वीकनेस कहीं पे है, तो रिहैबिलिटेशन जो चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है ना, कभी सर्जरी हुआ, स्ट्रक्चर में इश्यू आया, एक्सीडेंट हुआ, तो रिहैबिलिटेशन, वापस रिकवर करना अपनी बॉडी को सेम स्ट्रेंथ पे जो पहले थी, उनके लिए प्रोग्राम है। एडिक्शन में जो पड़ गए हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन, चाहे वो फूड एडिक्शन हो, चाहे एडिक्शन किसी भी ड्रग का हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, एडिक्शन से जो ग्रसित हैं किसी भी तरीके के, वो एडिक्शन से वापस निकलने का स्ट्रेंथ, जिनको रीजनरेट करना अपने अंदर, अपने बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी के सहारे
उनको खुश ना नहीं चाहिए, अपनी बॉडी खुद ही हेल्दी और खुश रह सके, तो एडिक्शन से किसी भी तरीके के निकलना हो तो उनके लिए प्रोग्राम है, वो कर सकते हैं ये प्रोग्राम। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी मैंने बता दिया, उसमें बहुत सारे और वर्टिकल्स आ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। उसमें फर्टिलिटी को लेके, जैसे कि किसको किसी को अगर अपने उनके बॉडी में फैट ज्यादा है, फैट कम करना है, उनका फर्टिलिटी हार्मोनल इशू आ रहा है, हार्मोनल अगर इशू आ रहा है आपके शरीर के अंदर, तो वो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडर कैटेगरी मैंने बता दिया, अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई सेड, दैट वेट इज मैनेज्ड बाय योर बॉडी, नोबडी एल्स। वेट आपका बॉडी मैनेज करता है। कैसे करता है अभी इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये बात आप 100% अपने गांठ बांध लीजिए, अपने साथ पकड़ के रखिए इसको। तो अगर आप बाहर काम करेंगे तो आपका बॉडी वेट कम कर देगा जबरदस्ती में, मगर वापस बढ़ा देगा। लेकिन आप अगर अपने बॉडी का वेट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो ये हमेशा मैनेज करके रखेगा। तो ये कैसे करता है मैनेज, हाउ योर बॉडी मैनेजेस वेट। तो दो तरीके का फैट होता है आपके बॉडी में, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट। एक फैट बाहरी फैट होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू, ये स्किन के नीचे जो फैट का लेयर है, ये बाहरी फैट है, एक्सटर्नल फैट। और दूसरा फैट होता है टिश्यूज के बीच में, इंटरनल फैट, जो बाहर नहीं दिखाई देता। जो पतले लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी विसरल फैट कहते हैं, इंटरनल फैट ज्यादा हो सकता है, आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, मगर उनके टिश्यूज के अंदर फैट ज्यादा है, तो उनको क्या होता है, रेजिस्टेंट डिजीज होता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से टिश्यूज में, तो उनको डायबिटीज हो जाएगी। या ट्रांसपोर्टेशन अंदर नहीं है, फैट जो को घी है ना भाई, चाय की छन्नी में मलाई लगती है तो क्या छनता नहीं है ना, रुक जाता है। तो आपके टिश्यूज में अगर फैट जमा हो तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, फूड इधर से उधर नहीं जा पाता, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन, लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन, जो सफाई कर्मचारी वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे ना आपके शरीर में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। इंटरनल फैट ज्यादा, विसरल फैट है, तो इसकी वजह से आपका शरीर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या करता है, जोर लगाता है अंदर से, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये नैरेटिव या ये ज्ञान आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। मैं आपको एक अलग नजरिए से समझा रहा हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर आपके बॉडी में कम होगा तो बॉडी प्रेशर क्रिएट करके, क्योंकि इसको जिंदा रहना है, तो बॉडी वांट्स टू लिव, तो इट वांट्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, तो वो जोर लगाता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर आपके बॉडी के अंदर फैट ज्यादा है तो क्यों है, मेद कहते हैं, मेद का मतलब क्या होता है, डेंस मटेरियल, गाढ़ा तत्व। मेद का मतलब होता है गाढ़ा तत्व। तो एक पैटर्न है आपके बॉडी का मेद क्रिएट करने का, एक पैटर्न है, जरा उस पैटर्न को समझिए। मैं आपको ये पैटर्न समझा रहा हूं। सो व्हेन यू ईट फूड, जब आप भोजन करते हैं, व्हेन यू ईट फूड, तो आपका शरीर उस भोजन को निचोड़ता है और उसका श्लेष्म पार्ट यूटिलाइजिंग मटेरियल और यूटिलाइजेबल मटेरियल, जो फूड का यूटिलाइजेबल मटेरियल है, इस्तेमाल करने का मटेरियल है, वो श्लेष्म है। उस श्लेष्म को वो ब्लड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट पकड़िए। अगर आपके बॉडी में ब्लड कम बन रहा है या ब्लड बनाने की क्षमता, खून बनाने की क्षमता आपके शरीर की कम हो गई है, जिसे मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं, खून बनाने की क्षमता अगर आपके शरीर की कम हो गई है,
तो वो श्लेष्म क्या करेगा, वो अनयूटिलाइजेबल रह जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो फैट बन जाएगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आपकी शरीर की हड्डी को का मैन्युफैक्चरिंग वीक हो गया, हड्डियों का मैन्युफैक्चरिंग वीक हो गया, तो आपके बॉडी में जो मेड फैट है वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो डिपॉजिट ही रहेगा। दो तरीके से चीजें बताई मैंने आपको, अगर इसको ध्यान से समझें तो अगर आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी फूड को कन्वर्ट करने की शक्ति अगर आपकी अच्छी है, यानी ब्लड में कन्वर्ट करने की शक्ति अच्छी है, तो वो फूड डिपोजिशन जो स्टोरेज में जाएगा वो कम जाएगा। इसका मतलब स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं बनेगा। दूसरी बात, जो स्टोर्ड फैट है उससे क्या क्या बनता है? जो स्टोर्ड फैट है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बोन, बोन मैरो एंड जिसे हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवम, ये चीजें बनती हैं। अगर हड्डी, मज्जा और बाकी एक्सट्रैक्ट, हड्डी से शुरू करते हैं, हड्डी या उसके आगे की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो आपके शरीर का मेद या फैट यूटिलाइज नहीं होगा। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपके शरीर में एफर्ट से होता है, जोर से होता है, जोर लगा के, हईशा। अब एक एग्जाम्पल भी लेंगे ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी। आपके पूर्वज यानी दादा दादी, नाना नानी या उनकी एक जनरेशन पहले, जिनसे भी आप वाकिफ हैं या जानते हैं जिनको, उनमें और आप में किस चीज का फर्क है? उनके अंदर और आपके अंदर क्या फर्क हो गया? मालूम है ना उनको कितना शारीरिक मेहनत करना पड़ता था? आप आज वो कर नहीं सकते ना। एक फीमेल पानी 1 किलोमीटर दूर से 2 मटके सिर पे रखे, 1 मटका साइड में लेके आ जाती थी, गीत गाते गुनगुनाते। आज आप करेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। वही उनको खेत में या फिर जिस तरीके का काम करना पड़ता था, उनको शारीरिक जोर, एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था, और वो लगाते थे शारीरिक एफर्ट, मगर परेशान नहीं होते थे क्योंकि उनकी एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। सभी अग्री करेंगे ना इस बात को? देयर फिजिकल कैपेसिटी वॉज मच मोर देन आवर फिजिकल कैपेसिटी। ये बात तो सभी मानेंगे ना। मुझे एक बात बताइए, अब मैं और जड़ में जा रहा हूं, यहीं पे नहीं रुकेंगे, पूरा सोल्यूशन चाहिए हमको, 100% गारंटीड सोल्यूशन चाहिए। और वही मैं आपका वही राज खोलने वाला हूं आपके सामने कि कैसे मिलेगा। जोर कैसे लगाते हैं आप? सभी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर मेरे साथ में, ठीक है? सबको करना है, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा। उंगलियों को फंसा लीजिए, क्लास्प योर फिंगर्स और खींचिए, जोर लगाइए, जोर लगा के। ये जोर कैसे लगाते हैं? हाउ डू यू मेक दिस एफर्ट? जरा सोचिए, कैसे लगाते हैं ये जोर? मसल से, माइंड से? नहीं 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 नहीं, अभी आप सही पॉइंट पे नहीं आए। और क्या जोर, कहां से जोर लगाते हैं? विल पावर से? नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं आए आप सही पॉइंट पे। प्रैक्टिकल चाहिए। ये हवा वाली बातें हम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे 100% प्रैक्टिकल बात करेंगे। ये जोर कैसे लगाते हैं? स्ट्रेंथ कहां से आता है, ये तो मैं पूछ रहा हूं गुरप्रीत साहब, स्ट्रेंथ कहां से आता है? हाँ एग्जैक्टली, अब मैं जो बोल रहा हूं ना वहां ध्यान देना। दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उंगलियों को क्लास्प करें। अब मैं जहां बता रहा हूं वहां पे ध्यान ले जाना अपना। देखिए स्ट्रेंथ कैसे जनरेट होता है। पुल कीजिए, जोर लगा के, जोर लगाइए, पूरा जोर लगाइए। देखिए आप सांस रोकते हैं, यू होल्ड योर ब्रेथ, तो आप स्ट्रेंथ कैसे जनरेट करते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। एफर्ट कैसे लगाते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, पुश। एक पाम को सीधा रखिए, एक से मुट्ठी बांधिए,
जस्ट पुश, पुश हार्ड। देखिए, यू होल्ड योर ब्रेथ, पुश हार्ड, होल्ड योर ब्रेथ। जंप कैसे करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड जंप अप, और ऊपर से नीचे आपकी सांस रुक जाती है। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, घर के कामकाज करना, शरीर से कोई भी वेट उठाना, कैसे करते हैं आप? ये एफर्ट इतने सारे कैसे लगाते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ in variable proportion. How do you dance? How do you sing? By holding your breath in variable proportion. तो आपके एफर्ट मेकिंग का कोर क्या है, जड़ क्या है? ब्रेथ होल्ड। आपने एफर्ट मेकिंग आपकी वीक हो गई। क्या वीक हो गया? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी वीक हो गई। एफर्ट अगर आपकी वीक हो गई तो क्या वीक हो गया? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी वीक हो गई। क्या आपने इंप्रूव करने की कोशिश की इसको? आपने तो इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर वेट बढ़ रहा है या चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही, यूज नहीं हो पा रही। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसको हम। वो क्या है? वो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है। आप दवाई ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं दवाई से किसी का तो इलाज नहीं हुआ, फिर भी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं ये कैसे होता है। वही मैं राज खोल रहा हूं आपके सामने, सीक्रेट। ठीक है, तो एक पक्ष, अभी तो एक ही पक्ष बताया। ठीक है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। अगर मैं केवल कुंभक, इसे कुंभक कहते हैं। एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी बॉडी, एनी लाइफ इज कॉल्ड एज कुंभक। जोर लगाता है जैसे कोई भी जीव इस संसार में, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो, वो भी कुंभक से ही जोर लगाते हैं। बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? बादल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? एक जगह लो प्रेशर, एक जगह हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट होती है। हाँ या ना? सबने पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, बारिश ऐसे होती है। तो ये प्रेशर रेगुलेट करना ही कुंभक कहलाता है। तो प्रकृति कुंभक करती है, तब बारिश होती है, हवा चलती है। आपके शरीर के अंदर कैसे काम होते हैं? कितने लोगों ने लाइफ में कभी भी छींक नहीं मारा? छींक नहीं आई किसी को? ऐसा कोई होगा? सबको आई होगी कभी ना कभी। क्या आपने कभी नोटिस किया छींक मारने से पहले सांस रुकती है? नोटिस किया? नहीं किया? मगर सबको एक्सपीरियंस में ये होगा, सांस रुकती है फिर छींक आती है। अच्छा, उल्टी किया होगा, वॉमिट किया होगा। वॉमिटिंग से पहले क्या होता है? सांस रुक जाती है। आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को कभी ना कभी फिजिकल इंटीमेसी का एक्सपीरियंस हुआ होगा। ऑर्गेस्मिक एक्सपीरियंस क्या होता है? जहां सांस रुक जाती है। बिना सांस रुके शरीर काम नहीं करता, मगर बिना सांस रुके अलग अलग प्रोपोर्शन में, अनुपात में आपके शरीर के ऑर्गन्स भी काम नहीं करते। तो अगर आपका लिवर कमजोर हो गया, पैनक्रियास कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गया, गोनैड्स कमजोर हो गए, हार्ट कमजोर हो गया, तो क्या लूज किया आपके ऑर्गन ने? कुंभक कैपेसिटी लूज कर दी। इसीलिए दवाई से कोई भी डायबिटिक ठीक नहीं होता, मगर कुंभक करने से ठीक हो जाता है।
दवाई से हार्ट मजबूत नहीं होता, मगर कुंभक करने से हार्ट मजबूत हो जाता है। दवाई से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे थायराइड ठीक नहीं होता, मगर कुंभक करने से ठीक हो जाता है। इसलिए इस तरीके के हम सारे प्रोग्राम रन करते हैं और सैकड़ों हजारों प्रूफ हमारे पास में हैं। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका शरीर काम कैसे करता है। अगर उसकी काम करने की क्षमता, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कम हो गई है तो आपको उसको वो बढ़ाना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। एकमात्र इलाज आपका शरीर है। दवाई आपका कोई इलाज नहीं करता है, आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी हैजंट क्रिएटेड एनी डिजीज. It is only in the last 100 years we are getting into all kinds of disease, and every disease is increasing, not decreasing. तो आपको वो समझना पड़ेगा ये शरीर काम कैसे करता है। अच्छा, अब अपने घर में एक दिन आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला कोई मजदूर बिल्डिंग बना रहा हो, लिपाई पुताई कर रहा हो, है ना, ईंटें चढ़ा रहा हो, ऐसा कोई मजदूर आपको आसपास में मिले तो उसको घर में इनवाइट कीजिए कि आज चल मेरे घर खा, भोजन कर ले मेरे घर, ठीक है। और अपने घर के ही किसी मेंबर को भी साथ में बैठाएं और दोनों को भोजन परोसें, फूड दोनों को परोसें। किसकी डाइट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली मजदूर की डाइट ज्यादा होगी ना। उसको कोई फैट फूड का डर नहीं होता। ओके ओके, आई थॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग ऑन. Sahana, you should have told me earlier. So I'll switch between English and Hindi. So if you invite a worker, a construction worker, and serve food with one family member by his side, whose diet will be more? Obviously, the worker's diet will be more. And he doesn't have to worry about weight increase. He doesn't have to worry about that. Why? Because he is doing heavy activity. And through that activity, the body will be able to utilize the food. But the real question is, you can't go back to the same kind of a worker's lifestyle or the lifestyle of your ancestors. You can't go back to that. And even if you try, you might land up in a heart attack condition. So, have you heard of these examples? 19-year kid started playing badminton, got into heart attack. Why? Because the organs are weak. If you force your body to do a lot of activity, it might collapse. So when we change the lifestyle from active lifestyle or lot of physical activity to less physical activity, what did we do to balance it out? जब हमने अपना लाइफस्टाइल बदला तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या काम किया? Nothing. Now you can't make more physical effort at this point of time, but let me tell you, you can make internal effort very easily at this point of time. By making internal effort, your organs will become strong
And then after some time, even if you make lot of external effort, you will not land into problem. How can you do this internal effort? Kumbhak is internal effort making. भाई बाहर का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है ना, वेट उठाया और एरोबिक्स रेजिस्टेंट एक्सरसाइज किया, किसी के अगेंस्ट में जोर लगाया, you know external resistant exercises. External resistant exercises will impact external fat, not internal fat or visceral fat. But internal resistant exercises will reduce visceral fat, which is major risk in your body. External fat is not risky. Internal fat is the real risk of your body. So you will have to do internal resistant exercise. By doing activity outside, you don't do internal resistant exercise. But by holding the breath in different order, you do internal resistant exercise. This is the only way to do internal resistant exercises, reduce visceral fat, reduce all kinds of resistance in the body, improve the flow, improve the transportation. It can be hormonal flow, blood flow, lymphatic flow. If you improve lymphatic flow doesn't improve by external activity, it improves by internal activity. You can also improve your detox factor. Then by doing internal resistant exercise, it's not a very appropriate term, so I'll say by doing Kumbhak, you improve hormonal flow, you improve blood transportation, blood flow, you improve lymphatic flow, you improve thereby organ strength and function. ये तो आप कर ही नहीं रहे हैं, ये तो आप कर ही नहीं रहे हैं. इंटरनल एक्सटर्नल कैसे हुआ? Now you make an effort on something which is outside, on something which is outside. So I'll give you an example. मैं example दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए. If you push a wall, अगर दीवार को धक्का दीजिए, what are you doing? You are making an external effort. ठीक है? Now one more example, but practical example. So what you will do? You will inhale from your mouth, full inhalation. Then you will hold your breath, and what you will do? You will push the air that you have taken in towards the ground. जमीन की तरफ में जो हवा है इसको पुश कीजिए. चलिए सभी करते हैं. Let's do. Inhale from the mouth. मुंह से सांस भरना, मुंह से सांस भरना. Inhale from the mouth. Hold the breath, and the air that you have taken in, push it down. एनस की तरफ में ध्यान दीजिए, मल द्वार. Push it down towards the ground. What kind of effort you are making? Internal effort? Isn't it? Internal effort. This is Kumbhak. This is Kumbhak. Now we can make hundreds and thousands of formula of internal effort making. You can relax. You don't have to hold your breath forever. Whenever, till whatever your capacity, you can hold your breath and then you can relax. So we can make formulas, internal effort formulas. One formula, the effort gets directed towards your liver. Another formula,
the effort gets directed towards your kidney. Another formula, the effort gets directed towards another organ, which can be your brain. Through this, we can create actually thousands of formulas of Kumbhak, but everybody doesn't need all the formulas. So what do? We find out what effort making of your organ or your body has become weak. So we do one of its kind of a diagnosis in the whole world. This is called as Prana Shakti diagnosis. Right? So a vertical of that Prana Shakti diagnosis is Dhatu. Dhatu Shakti diagnosis. What does it mean? Which organ has become weak inside your body and what effort making has become weak inside your body. So the umbrella is Prana Shakti diagnosis. Through this diagnosis, we diagnose what capacity your body has lost, effort making capacity. So we don't need any blood samples. We don't need any kind of a sample of your body. We just want you to do some experiment with your body and write down the numbers to us. If you do a little experimentation and observation of your body, अगर शरीर के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करो और कुछ ऑब्जर्व कीजिए, कुछ नोट डाउन कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे. Through that we analyze the system and find out, come to a inference that this particular effort has become weak in this particular body. If we improve, if we give you a practice, customized practice to improve that kumbhak or that effort making, you will see your problems, not only one problem, multiple problems you can come out of. Because ultimately, it is your body which actually treats you. No medicine treats human body. This you have to understand. Because there is not a single proof of treatment. So medicine cannot treat your body, but Kumbhak can help you come out of your problem. It can be any kind of problem. Complete it, 100% reversal can be done by your body, not your any medicine. And if your body's metabolism improves, effort making ability improves, then you won't have to worry about, because your body will be utilizing food to its optimum level, making all the tissues and transporting all the ingredients to all the organs and tissues. So your regeneration strength will be good. Your organs will regenerate properly, and later on in your life, you will not get into any chronic disease. What are chronic disease? All the metabolic disease, diabetes, thyroid, and autoimmune disorder, mental issues like depression, attention deficit, heart disease, lung function, any disease related to lung function. If a second attack of corona happens, you won't even need medicine. Your body will be strong to recover from any kind of infection also. And now I'm coming to immunity. Right? Now I'm coming to immunity. What is immunity? So, if you go from land area, low land area to high mountain area, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली आपको मालूम है. अगर जमीन से पहाड़ों के ऊपर जाएंगे आप,
डू यू थिंक यू नीड एक्लेमेटाइजेशन? जब आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है तो एक्लेमेटाइज किया जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं आपको उस नए एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए. So your body needs some time to adjust to a new kind of environment. This is called as adaptation or acclimatization. कहा जाता है ना, adaptation to a new kind of environment. In the last 100 years, have we changed the environment? Yes or no? 100 साल में वातावरण बदल दिया, फूड बदल दिया. हैव वी चेंज द फूड? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड. हैव वी चेंज द फूड? हैव वी स्टार्टेड बॉम्बिंग द बॉडी विथ केमिकल मेडिसिन? हैव वी स्टार्टेड बॉम्बिंग द बॉडी विथ केमिकल मेडिसिन? So we have created a new ecosystem. हमने नया वातावरण बना दिया ना. What we are putting in our body and external environment, दोनों बदल दिया ना. Do you think your body needs acclimatization or adjustment? Yes or no? इस नए इकोसिस्टम के लिए क्या आपके शरीर को एडजस्टमेंट की दरकार है, जरूरत है, अडेप्टेशन की जरूरत है? तो वो अडेप्ट कैसे कर रहा है? बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म को कम कर रहा है. ये क्या है? ये बीमारी है या एडजस्टमेंट है? इज दिस डिजीज और अडेप्टेशन? क्वेश्चन मार्क. आई एम पुटिंग योर क्वेश्चन. आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. आप सोचते हो ये सफेद कोट और ये फिरंगी समझदार होते हैं? ये तो सबसे मूर्ख प्रजाति है. इस पृथ्वी पे पैदा होने वाली सबसे मूर्ख प्रजाति ये वेस्टर्न गोरे लोग हैं. ये धोखा दे के जीते हैं और आप इनके धोखे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं. कोलोनाइजेशन करते हैं, लूटपाट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर आप उनको सर पे बैठा रखा है. सारी आपके बच्चे बिगाड़ दिए उन्होंने. अभी भी आप नहीं समझ रहे, उनकी जेनेटिक डिजीज क्रिएट कर दी है. 2 साल 3 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं. ह्यूमन जीनोम हैज गॉट डिविएटेड इन द लास्ट 100 years. डू यू नो दिस? आंखें कब खोलेंगे? सबसे समझदार प्रजाति आपके पूर्वज थे, आपके बाप दादा थे. तो इनकी बातें सुनना जब तक जारी रखेंगे तब तक अपने आप को बर्बादी करेंगे आप. तो नए एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए? टू सर्वाइव इन द न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, योर बॉडी इज ट्राइंग टू एडजस्ट, अडैप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. यू आर कॉलिंग इट डिजीज. आपका शरीर तड़प के किसी तरीके से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं गलत है. व्हाट आर ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग इन? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, पैरासिटामोल पेन किलर जो आप लेते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर. क्या सुनाई दे रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना किसी रॉकेट का नाम है, बॉम्ब का नाम है. कीमोथेरेपी, मस्टर्ड गैस. ये आप अपने शरीर पे कर रहे हैं और आप सोचते हैं हेल्थ मिल जाएगा. आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हो और कुछ भी नहीं. गलत संगत से ना कभी अच्छा काम नहीं होता. संगत बुरी हो गई है. लाखों सालों से इस शरीर ने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की.
अभी तो ये बीमार हो रहा और ये सारे काम कर रहे हैं हम उसके साथ। आप टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलते हैं? इस शरीर को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलते हैं, और उसको आगे साइंस का टैग भी लगाया हुआ है मार्केटिंग के लिए। तो आपका शरीर स्ट्रगल कर रही है, बॉडी स्ट्रगलिंग। सी आई हैव नॉट सेड इट इन इंग्लिश बिकॉज अंग्रेजी में वो जोर नहीं आएगा जिस तरीके से मैंने उनको बोला है, सो दैट इज व्हाई आई सेड फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए, आई कांट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। तो कहने का मतलब, सो व्हाट आई एम सेइंग इज योर बॉडी वांट्स अ लिटिल मोर टॉलरेंस, सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। वो स्ट्रगल कर रहा है न्यू इकोसिस्टम में, आपको उसको और टॉलरेंस उसका बढ़ाना है। यू हैव टू इंक्रीज द टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी। सो टू गिव यू अनदर एग्जांपल, एक नया एग्जांपल देता हूं। whenever you are passing through a red light in your vehicle, when you are passing through a red light in your vehicle, you see small kids asking for some money, है ना, भीख मांग रहे बच्चे मिलते हैं ना आपको। Those kids you will find in a winter season, in a rainy season, in a hot weather. They are always there, isn't it? They don't get into disease very easily. But kids living in a very good society, when rain happens, they go outside, they catch cold. So what is the difference? दोनों में डिफरेंस क्या है? टॉलरेंस, झेलने की क्षमता, टॉलरेंस। Now to convert tolerance into a practical method, what do you do? आप क्या एक्सपेरिमेंट करो, ये अभी नहीं करेंगे। whenever you have free time you can do this. जब आपके पास में फ्री टाइम है तो आप एक्सपेरिमेंट करो। 10 किलो की आटे की बोरी, 10 kg दैट, क्या कहते हैं उसको, 10 किलो का बोरा वेट, एनी 10 kg वेट, यू ट्राई टू लिफ्ट अप, आप उठाने की कोशिश करें। हाउ डू यू लिफ्ट दैट वेट और एनी काइंड ऑफ वेट? यू जस्ट ट्राई टू लिफ्ट अप। हाउ डू यू लिफ्ट दैट वेट? उसको झेलते कैसे हो 10 किलो को अपने शरीर पे? डू यू होल्ड योर ब्रेथ? डू यू होल्ड योर ब्रेथ? नाउ इफ यू हैव टू लिफ्ट 20 kg वेट, what is more required? What is required more in your system? More breath holding capacity, isn't it? To increase the tolerance, what do you need to do? Improve the breath hold capacity, isn't it? Are you doing it? So if you increase the breath hold capacity, your tolerance will increase, thereby getting into frequent infection or getting into some kind of a chronic infection will reduce drastically in your life. एक पांव पे खड़े हो जाएं कभी भी अपने फ्री टाइम में करेंगे। हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? By holding your breath. You are moving or you are in a bus, standing and holding a pillar, the iron rod, the pole of the bus. When the bus is going in a flat surface on a plain road, you can even drop the hold or leave the pole. You will be able to balance yourself. But suddenly the bus goes in a very tough terrain, up and down, rough terrain. What happens? You hold the pillar tight. What are you trying to do? You are trying to protect yourself, isn't it?
You don't want to fall down. You want to protect yourself from falling down. But how do you hold tight? By holding your breath, isn't it? So your protection capacity increases by increasing your kumbhak capacity. Your immunity increases by increasing your kumbhak capacity. So, and I can give you thousands of examples. You are watching a horror movie, and most of you would have done that. If you are watching a horror movie, एक horror movie आप देख रहे हैं, and suddenly a scene comes, very fearful, fearing scene comes. What happens? You don't know, but unknowingly you hold your breath. Unknowingly you hold your breath. When somebody wants to hit you, you want to protect yourself. You hold your breath and tense your body so that the impact reduces. Your body doesn't get the impact of the hit. यही करते हैं ना, जब डर जाते हैं तो सांस रुक जाती है. जब कोई आपको मारता है तो आप सांस रोक के अपने आप को बचाते हैं. तो आपका रिस्क कम कैसे होता है? हाउ द रिस्क रिड्यूसेस इन योर बॉडी. हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क इन योर बॉडी? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. अब ये इतना रिस्क आप डाल रहे हो, जो साइड इफेक्ट ऑफ ऑल दोस मेडिसिन एंड फूड यू विल गेट. हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दैट? By increasing the breath hold capacity. This is also called as, in Ayurveda it is called as Vyadhi Kshamatva. Vyadhi Kshamatva. Ability to come out of a risk is called as Vyadhi Kshamatva. So, Kumbhak is the Brahmastra of Ayurveda. Please listen it carefully. Ayurveda का सबसे strong part, the most powerful part of Ayurveda is Kumbhak. Because by Kumbhak you reduce your Vata dosha, your Pitta dosha and your Kapha dosha. Through Kumbhak, by changing the pressure gradient of your body, you can control the Vata, Pitta, Kapha aspect of your body. Right? So, you know, Ayurvedic medicine take long time for result, isn't it? Because the plug-in is not there. You want the fan to work without plugging in into the socket. It will never happen. So the current of Ayurveda is Kumbhak. If you do Kumbhak and take any kind of Ayurvedic medicine, the result will be miraculous. But you don't need medicine to control all your factors throughout your life. Medicine is to be used for a very short term. Kumbhak is something which can be done throughout your life. So, immunity, I told you about the weight, fat increase, why it happens. I told you about metabolism. I told you about immunity, and the last part of my presentation would be to tell you a little story about your body and why it is very important and necessary, urgently required in an emergency basis to help your body. It is in an emergency basis required to help your body improve its functions, improve its strength, and the recovery strength along with it. So, when you take any kind of food, the metabolic factor of your body starts functioning. But if you take any kind of substance which is not your food, then your body wants to throw it out, or it raises its alarm or immune response. Whenever a risk comes to your body, what is risk for this body? Anything which is not your food is risk.
So your body is designed for metabolizing food. Now let me tell you, if you take any kind of medicine, is it your food or a risk? It is not your food, so it is a risk. That is why 95% of whatever you take inside this body, the body throws it out. 95% of your medicine is thrown out of this body by dissolving in water, and through urination this body throws out 95% of whatever medicine that you take, because your body was never designed for medicine. So medicine is huge risk. Now 5% is overloaded. This is called as dose titration is done so that liver bypass happens, so that medicine bypasses the liver function and enters your body. This is the first torture that you do to your body, right? So liver function is the first step of metabolism in your body. There are 6 steps of metabolism in your body. Through that, 7 different qualities of tissues gets formed. So this 6 metabolic strength of your body is called as Deha Bala, Dhatu Bala, Dosha Bala, Agni Bala, Mano Bala, Ojas Bala. Bala means strength, metabolic strength. And 7 qualities of tissues are formed inside your body. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. Out of all those 7, one is Med. Med plays a very important role in reducing the risk of your body also. दोबारा से बोलो, ध्यान से सुनिए. Med factor of your body. What is Med factor of your body? Fat, cholesterol, triglyceride, fat, both fat, external, epithelial fat and visceral fat. So fat inside the tissue also. Fat आपके शरीर के रिस्क को कम करता है. So when you put lot of risk inside the body, your body increases cholesterol and triglyceride to reduce the risk, to make cortisol. So cholesterol triglyceride, increasing cholesterol triglyceride is risk mitigating mechanism of your body. Don't make it a culprit. When you bombard your liver with chemicals, you put some chemical on your skin, it will start burning, isn't it? You put a little fat, ghee on it, the burning will reduce. The liver also does that, because liver gets into inflammation. So for reducing inflammation, it increases fat, and you call it bad. You don't want your body to live. Whenever there will be lot of inflammation in the body will also increase the Meda factor to reduce the risk. Without decreasing the risk, if you reduce the fat, you are torturing your body. अगर रिस्क है और आपका शरीर फैट बढ़ा रहा है, तो रिस्क कम करने के लिए बढ़ा रहा है. बिना रिस्क को कम किए अगर फैट कम करोगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके ऑर्गन वीक हो जाएंगे, ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. Right? So by starving the body, by putting some kind of a chemical to reduce whatever impacts or whatever the symptoms you are getting in your body, it will not help the body at all. तो आपको क्या करना है? 2-3 चीजें दोबारा से रिकैप करता हूं. योर बॉडी इज नॉट अ कल्प्रिट. जो भी ये काम करेगा अपने को ठीक करने के लिए करेगा. यू वांट टू लिव और नॉट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट योर बॉडी वांट्स टू लिव, नो क्वेश्चन मार्क. So whatever your body does,
it either decreases the risk, wants to decrease the risk, or wants to regenerate, create a balance. इसीलिए autoimmune disorder नहीं होता. Your body is frequently increasing the immunity because you are putting lot of risk inside the body, in the form of medicine, in the form of food which is not your real food, and of course the environment. So please don't treat your body as a criminal. Improve the metabolic factor of your body, improve the immunity of your body, increase the tolerance of the body, and then what you will see is your body will start coming to a certain sense of balance and strength. Thereby the fat metabolic strength of your body will improve, and your body will be able to handle fat without the risk of what you call as starving your body. How you reduce the fat? By starving your body or putting some chemical. So without doing that, your body will be able to manage the fat, which is the right approach. And it can give you lot of other benefits. बहुत सारे और benefit मिलेंगे आपको. After person who is doing kumbhak, once the fat starts reducing, and the time period will be different for different people. Okay, depending upon the condition of your body, the momentum of disease, and the kind of torture that you have done to the body, उसके हिसाब से depending upon that different time लेगा. There are people who have reduced many kgs, 7-8 kgs within the first month, but there are people who have started losing after some time. That is the right approach. The moment your body is fat, metabolic strength will improve, your body will balance out the fat, internal as well as the external fat of your body. ये चीज सबको करना ही चाहिए. This is how you can help your body, and it will also you'll see lot of other disease or difficulties suddenly evaporate, goes off. Once you improve the mechanics of this body, the functional mechanics of this body, there are related difficulties in your life which will suddenly go out of your life. Not only that, your confidence will boost up, your mental strength will improve. If somebody is depressive, then they would come out of depression very easily. Somebody can't sleep properly because the metabolic rhythm is not proper. The moment metabolic rhythm improves, and a person who does kumbhak, हमारे पास में ऐसे बहुत example, there are lot of examples. People say they were taking a lot of medication for sleeping. Now after doing kumbhak, they have dropped every kind of medication and they sleep like never before. So lot of examples, proof is there. The real thing is your body can treat you, heal you. Your body has the capability to recover from any disease and difficulties. Help your body recover yourself. And how your body functions? Through kumbhak. So kumbhak is that factor which keeps the health factor on, or the functional ability of your body, external, internal. It creates that ability. You just do kumbhak, and there is a customization also in the program where we actually work upon the root weakness in your body. Thereby lot of other improvements can be seen and has been seen. And if I keep talking, I can pull up one factor and keep talking about it, elaborating it, but then it will not help. So webinar is a platform to inspire you, work upon yourself. It's a platform to inspire you, to give you completely out of the box kind of a narrative, which you can understand also easily.
We can elaborate if you join the program. Lot of things will be elaborated later on. Each and every aspect which you want to know about can be elaborated. But here we have a time constraint. So I'll have to stop here. And then later on, you can ask some questions, which I'll answer. And in the meanwhile, we'll listen to some testimonials and then how this program is conducted. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I am sure we have got an insight on how we can work in our weight change and to maintain that weight. Now, I would like to request Anilji to please share the program details. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds and I'll share my screen. रचना जी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ. ऑलराइट, सो जल्दी से जान लेते हैं प्रोग्राम डिटेल्स क्या है, कब कब क्लासेस रहेंगी और फीस क्या है. A lot of people are waiting for it, so let's continue. Amida Shri Shuddha Chikitsa program details. First of all, this is a guided program conducted online on the Zoom app बाय ट्रेंड कुंभक मेंटर्स. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. जस्ट लाइक यू आर अटेंडिंग द लाइव वेबिनार ऑन द जूम, इन द सेम वे you will be attending your classes. That is one. Program overview. It's a 6-week program. There'll be 18 live classes, which means 3 classes every week for 6 weeks. There's a Pran Shakti diagnosis for root cause determination. And this is a unique diagnosis of its kind. Swamiji talked in the video also. Then there'll be a customization class. This is the program overview. Batch 20th will start on 18th January, which is a Thursday at 7 p.m. ये evening batch है. First 2 classes will be on Thursday and Saturday. And from next week onwards, every Monday, Wednesday, and Friday. We'll post the class dates in the group, in the WhatsApp group, and in the chat here also. What is the class experience like? क्लास में कैसा अनुभव रहता है? As you must have understood by now, these are live sessions. जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि ये live sessions रहेंगे Zoom ऐप पर. Mentors watch all the participants in the class. सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारे जो मेंटर्स हैं वो कैमरा पर देखते हैं, इसीलिए आपको कैमरा ऑन रखना कंपल्सरी होगा क्लास में. Then there'll be written instructions in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी मिलते हैं. And session recordings will be there. What are these session recordings? These are live class recording, live class sessions. Then there'll be a lot of extra things like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan because there are no diet plans given in this program. You'll get a video from Swamiji in which he'll be telling you about how to use food in a way so that it supports your body and not harm it. आपको एक वीडियो मिलेगा स्वामी जी का जिसमें वो डाइट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से खाने को इस्तेमाल करना है. कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान नहीं होगा इसमें बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म पे काम किया जा रहा है इस प्रोग्राम में. एंड देन देयर विल बी सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस. And during the course of your 6 weeks, there'll be a lot of knowledge shared with all the participants. And before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है कि लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके एक्चुअली किन लोगों के लिए है. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. This is a very, very important point. By magic pill or by telling that there's no shortcut. In short, what we want to say is there's no shortcut. Especially in the weight loss segment, people are in a hurry. लोग जल्दी में होते हैं वेट लूज करने के लिए. जल्दी से उन्हें चाहिए कि 1 हफ्ते में लूज हो जाए, कुछ ना कुछ 1 महीने में लूज हो जाए. एंड इसी का फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे
जो डाइट प्लान या एक्सरसाइज या जो वेट लॉस में आप कोई ना कोई प्रोग्राम सेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं कि आप इतने, एक हफ्ते में इतना लूज कर लेंगे वेट, एक महीने में इतना कर लेंगे। सी, वो कर लेते हैं, बट अगेन जैसे ही आप उस चीज को छोड़ते हैं वापस वो चीज आ जाती है। बिकॉज आप रूट कॉज, आप जड़ पे काम नहीं कर रहे ना। बॉडी की जो टेंडेंसी है वेट गेन करने की, उस पर तो काम नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरीके से आपको वेट लॉस को करा देंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता नहीं। देन दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन द बॉडी। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे, जो मेटाबॉलिज्म पे काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। कोई भी आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो समय लगेगा, राइट। तो ये बहुत क्लियर कट है। वी डोंट वांट पीपल हु आर इन अ हरी। जो लोग जल्दी में हैं वो इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं है। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 60 to 70 minutes एवरी डे ऑन देमसेल्व्स। 60 से 70 मिनट आपको अपने ऊपर लगाने होंगे, डेली जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए। और एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट। ये भी सेम, लगभग सेम ही पॉइंट है कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से रातों रात आपका वजन नहीं बढ़ा तो रातों रात जाएगा भी, ये समझना। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जो एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कि एक फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार है अबाउट नेचुरल वेट मैनेजमेंट। नाउ मेनी पीपल थिंक दैट द प्रोग्राम इज फ्री। द प्रोग्राम इज नॉट फ्री बिकॉज इट्स डन अंडर सुपरविजन। ये एक्सपर्ट की सुपरविजन में कराया जाता है प्रोग्राम, सो इट कैन नॉट बी फ्री। The webinar that you are attending right now, this is free because it's an introduction to Ameda. It's an introduction to Kumbh, which not many people know, right? So ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको, क्योंकि पहले कुछ हो चुका है। लोग, जब हम फीस अनाउंस करते हैं तो काफी लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं फ्री में है, वेबिनार फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री नहीं, राइट। ये जरूरी है समझना। एंड देन अगर आपने टिप्स के लिए ज्वाइन किया है ये वेबिनार, और ऐसे बहुत सारे वेबिनार आप अटेंड करते हैं टिप्स के लिए, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। क्योंकि वेट लॉस या कोई भी प्रॉब्लम ना टिप्स के बेसिस पर नहीं सॉल्व होती है लॉन्ग टर्म। अगर टिप्स के बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व होनी होती, वेट लूज होना होता, तो हजारों वीडियोस है ना यूट्यूब पर, तो वो कर चुके होते अभी तक। सो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग की बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप एज एन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम वेबिनार ज्वाइन करेंगे तो एक अलग फी होती है। और वेबिनार में क्योंकि काफी लोग ज्वाइन करते हैं एक साथ, और एक साथ एनरोल भी करते हैं, तो हम वो डिस्काउंट जो है, बल्क डिस्काउंट जो है, बल्क वो पास ऑन कर पाते हैं। नॉर्मल जो प्राइसिंग है इसकी 9,500 है, बट एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है जस्ट 5,500। ये इतना अफोर्डेबल बना दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, इसका बेनिफिट ले पाए। पेमेंट मेथड्स क्या क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जीपे, इंटरनेशनल के लिए क्रेडिट कार्ड या पेपैल से आप पे कर सकते हैं। वट एवर इज योर कन्वीनियंट मेथड टू पे, यू कैन पे। नाउ हाउ टू एनरोल? You pay the program fee, that is step one. You post your payment receipt in the group, in the WhatsApp group. Neha from our team, she will confirm your payment and then she will send you further instructions on your personal chat. Then step three is to submit your details to access the course dashboard. What is this course dashboard? Course dashboard is the place where all the class recordings will be stored and where the written instruction will be there. I'll talk about it in detail also after a short while. And step four is to join the class WhatsApp group for daily support. उसकी भी मैं बात करूंगा डेली सपोर्ट कैसे मिलता है. Now, what all you get in the program? First is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Let me explain how exactly this is done. स्वामी जी ने थोड़ा वीडियो में बताया था कि कैसे होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ. पहली बात तो ये एक नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है, एंड सेकेंडली ये नॉन ऑनलाइन डायग्नोसिस है. अब दोनों ही चीजें बहुत अजीब सी होंगी.
क्योंकि ना तो आपने कभी ऑनलाइन डायग्नोसिस कराया है, ना ही नॉन मेडिकल डायग्नोसिस कराया होगा। ये होता क्या है फिर? आपको एक फॉर्म का लिंक मिलता है और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा जाता है अपनी ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर, और वो लिखना होता है फॉर्म में। सेकंड, आप सभी जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं आपको वो इस फॉर्म में लिखना होगा। एंड थर्डली, आप एक सेल्फी फोटो अपलोड करेंगे शोल्डर एंड अबव, जिसमें आपका चेहरा बहुत ही क्लियर दिखता हो लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो। तो जब ये तीन चीजें स्वामी जी के पास पहुंचती है तो वो पता कर पाते हैं कि कौन से वीक फैक्टर्स हैं आपके शरीर में। स्वामी, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो स्वामी जी का, उसमें इसकी बात करते हैं कौन से वीक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस स्वामी जी पता कर पाते हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रोग्राम का। देन देयर बी 3 लाइव क्लासेस पर वीक, 60 to 70 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। Access to class recordings will be there so that you can watch the recording of the class later on. If you miss the live class, then you can watch the recording. If you attend the class also, but you want to watch again, then that can be also done. Then separate videos of all the kriyas will be given. ये छोटे छोटे वीडियोस होंगे सभी क्रियाओं के, कौन सी क्रिया कैसे की जाती है उसका छोटा छोटा वीडियो, और जो पूरी क्लास है 60 to 70 मिनट्स उसकी भी रिकॉर्डिंग। देन रिटर्न इंस्ट्रक्शन, लिखित निर्देश आपको मिलते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। डेली सपोर्ट इन द क्लासरूम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, डेली सपोर्ट। ये क्यों जरूरत होती है? व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड? लाइक आई सेड, 3 days of the week you will be live with us attending your classes. The remaining 4 days you will be practicing on your own. बाकी 4 दिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और उस समय कुछ भी आपके मन में डाउट आता है क्रियाओं को लेकर, उस कोई सवाल आता है आपकी क्रियाओं को लेकर, तो आपने इस ग्रुप में पूछना है। Any doubt that you have while doing your kriyas yourself, this is the group where you will be asking your doubts and questions in. हमारे मेंटर्स इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर डाउट्स तब आने शुरू होंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में तो लगेगा आपको कि सब समझ में आ गए, पर जब खुद करने लगेंगे तब डाउट्स आएंगे। उसके लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है, सपोर्ट ग्रुप। देन कस्टमाइजेशन ऑफ क्रियाज एज पर द पीएसटी। पीएसटी क्या है? प्राण शक्ति डायग्नोसिस, जो फर्स्ट पॉइंट था। सभी पार्टिसिपेंट्स का जो प्राण शक्ति डायग्नोसिस होगा उससे रूट कॉज पता चलता है प्रॉब्लम का या आपके वेट गेन का। अब सभी का या ज्यादातर लोगों का वेट गेन जो है, जो रीजन है, जो कारण है आपका वजन बढ़ने का, वो अलग अलग हो सकता है। और उसके आधार पर आपकी जो क्रियाएं होंगी उसको स्वामी जी कस्टमाइज करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे आपके प्राण शक्ति डायग्नोसिस के आधार पर। तो ये कस्टमाइज्ड क्रियाएं हैं जो सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 7 days ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर। जब से ही 6 हफ्ते खत्म होते हैं उसके बाद 7 दिन का एक्स्ट्रा सपोर्ट लाइव चलता है। जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो डेली सपोर्ट जहाँ मिलता है आपको, वो 7 दिन और एक्टिव रहेगा। कुछ भी डाउट फिर भी बचता है, वैसे तो आप डेली क्रियाएं करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली डाउट्स आएंगी, डेली क्लियर करेंगे उन डाउट्स को, आगे के लिए आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। बट फिर भी 7 दिन का और एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट मिलेगा कि अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज रह गई है, बच गई है, तो आप पूछ सकते हैं। नाउ हाउ डू वी मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? काफी लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम है, कैसे पता लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, या हम कैसे जान पाएंगे कि पार्टिसिपेंट्स ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके आप में भी काफी लोग ऐसे होंगे शायद जिनके मन में ये सवाल होगा। वो हम ऐसे करते हैं, एक 7 लेवल का बुलेट प्रूफ सपोर्ट है जो इसका जादू है। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस। ये मैं ऑलरेडी बात कर भी चुका हूं, बट इफ यू डिड पे अटेंशन, जस्ट दोबारा से सुनिए आप। पहला जो लेवल है सपोर्ट का, डाउट्स क्लियर की जाएंगी लाइव और मेन क्लास, जो आपकी अ, एक लाइव मेन क्लास रहेगी और एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी। उसमें क्लास के बाद आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं लाइव, राइट। देन रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया इंग्लिश हिंदी दोनों में, वहां पे क्लियर नहीं है तो आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन से क्लियर कर सकते हो। क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी दोबारा देखने के लिए। ये तीसरा लेवल का हो गया सपोर्ट। तो एक फिर चौथा लेवल का सपोर्ट क्या है? छोटे छोटे वीडियोज है सभी क्रियाओं के,
राइट। तो एक एक वीडियो देख के आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। देन 6 days सपोर्ट इनसाइड द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। फिर भी कुछ डाउट है तो आप क्लास ग्रुप में पूछेंगे। देन 6th, पर्सनल फीडबैक एंड सपोर्ट ऑन द फोन। हमारी एक टीम है जो हर एक पार्टिसिपेंट को फोन पर कॉल करके पता करते हैं कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या थेरेपी या आपके ट्रीटमेंट या आपकी क्रियाएं कैसी चल रही है, क्लासेस कैसी चल रही है, ये फोन पर पूछेंगे आपको। एक एक पार्टिसिपेंट को कॉल आएगी। देन 7 days ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट आफ्टर द कोर्स इज ओवर। तो कुछ चीज इसमें बचती नहीं है कि आप गलती कहीं कर देंगे। आप चाहेंगे भी तो भी गलती आप नहीं कर सकते। इसलिए हमने सपोर्ट सिस्टम ऐसा बना दिया है इसमें। ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम से भी बेटर बना चुके हैं, क्योंकि ऑफलाइन प्रोग्राम में ना आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलती है, वो हो सकता है मिले, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से निश्चित कर लिया है कि हर एक पार्टिसिपेंट अच्छे तरीके से सभी कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। देन ये लास्ट स्लाइड है मेरी प्रेजेंटेशन का। ये सपोर्ट टीम है हमारी, विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। रचना शर्मा बोथरा ये प्रोग्राम डायरेक्टर है, एंड she is the host of this webinar also. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of the batches, mentors, which mentor to assign to which batch. रंजना सुएन मेंटर है, विभा चोर के मेंटर है, गंगा मेंटर है। देन हिमांशु रेड्डी टेक्निकल है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू अपलोड ऑल द वीडियोस, रिटन इंस्ट्रक्शंस, course dashboard. Anil Chauhan, WhatsApp admin, that's me. Uh, I'll be answering all your questions after the webinar inside the WhatsApp. And then Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge. She is the person you'll be talking to the most before starting your classes, before the enrollment. नेहा ही आपकी पेमेंट को कंफर्म करेंगी और आपको लिंक्स भेजेंगी आपकी पर्सनल चैट पर व्हेन यू मेक द पेमेंट। इस तरीके से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। And with this, I come to the end of my presentation. Thank you. And I hand over the webinar back to Rachna. आप म्यूट पे हैं रचना जी। Thank you so much, Anilji, for sharing the program details with our participants. Now, I would like to request Jyoti ma'am to please share her journey of Ameda. Jyoti ma'am, am I audible to you? Jyoti Kirpekar ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining us today evening. नमस्ते, मैं ज्योति किरपेकर पुणे से आपके साथ जुड़ रही हूँ। पहले तो मुझे ये मेरा अनुभव साझा करने का मौका दिया, इसके लिए हमारे गुरुजन अनीता जी, नेहा जी, रंजना जी, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ मेरे पति, उन्होंने मुझे ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो गए प्रशिक्षण वर्ग में। तो इसके पहले मैं मेरा अनुभव आपके साथ कहना चाहती हूँ कि 5-6 महीने पहले मेरे पति को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ था। उनके उंगलियों में बहुत जलन हो रही थी, पाँव में जलन हो रही थी, चप्पल नहीं पहन सकते थे। इसीलिए उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार शुगर चेक करो। तो उनकी शुगर बढ़ गई थी, शुगर लेवल, और इसीलिए वो बहुत ही मतलब डिस्टर्ब हो गए थे, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो एक दिन उन्होंने स्वामी राज विभू जी का विज्ञापन डायबिटीज रिवर्सल वेबिनार देखा और हम लोग बहुत खुश हुए और उस कार्यक्रम में हम शामिल हुए। 28 नवंबर से वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अभी 1.5 महीना हो गया है। और उसका फायदा हमें इतना अच्छा हुआ कि उनका शुगर लेवल नीचे आया। आज वो चप्पल पहन के आधा पौना घंटा घूम सकते हैं। और हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इतना फायदा हुआ है तो वेट लॉस के लिए कुछ कुंभक प्रशिक्षण कुछ कार्यक्रम है क्या नहीं, ऐसी बात चल रही थी। तो 4-5 दिन उसके पहले उसका वजन घटाने के कुंभक कार्यक्रम विज्ञापन हम लोग ने देखा और मैं बहुत खुश हुई। और इस बात से ज्यादा खुश हुई कि उसमें एक वाक्य लिखा था कि वेट लॉस विदाउट डाइट प्लान। तो मैं और ही खुश हुई, क्योंकि जहां भी जाती हूँ कि ये मत खाओ, चावल मत खाओ, स्वीट मत खाओ, तो ये कुछ भी नहीं था। ये कुंभ क्रिया का प्रशिक्षण में शामिल हुई 14 दिसंबर को।
और अमेदा का 18वीं वर्ग की मैं विद्यार्थिनी हूँ और इस मुझे प्रशिक्षण में शामिल हुए करीब 1 महीना हुआ है और मुझे खुशी होती है कि इस 1 महीने में मुझे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। जैसे कि वजन 2 किलो मेरा कम हुआ है और दूसरी बात, मेरे पुराने फेवरेट ड्रेसेस से मुझे आज फिर से होने लगे हैं, मेरी कमर कम होने लगी है। ये सब हुआ उसका कोई खाने पीने की परहेज से या कोई विशिष्ट प्रकार के खान पान से। सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ वजन घटाना ये बात नहीं है, तो मेरी रोज की ऊर्जा शक्ति बढ़ गई है और मेरे जीवन के प्रति देखने का सोच में अच्छे बदलाव आए हैं और मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मेरी कमर, पीठ दर्द और कमर दर्द में बहुत ही दर्द हुआ रहता था। ये सब मुझे इसका अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है और ये सब आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि ये कुंभक प्रशिक्षण काम करने से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। और स्वामी राज विभू जी के जो सभी संपूर्ण जो संघ है, एक कार्यकुशल है और उत्तम उनका संगठन है। यहाँ के सभी गुरुजन आपके साथ सदैव रहते हैं, आपसे बार बार संपर्क में रहते हैं, आपकी कुंभक क्रिया कैसे करते हैं, कैसी सही हो रही या नहीं, या फिर उसमें कुछ सुधार जरूरत है या नहीं लाने की, ये सब देखते हैं। और मैं इस मेरे वर्ग की जो गुरुजन है सुश्री रंजना जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनसे हमें, उनकी जो चेहरे से जो मुस्कान है, जो तेज है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वो हमसे सराव करके लेती है। अगर कुछ नहीं आया तो हमसे बार बार वो करवा के लेती है। तो मैं सभी इस हमारे गुरुजन जो है, रंजना जी है, सुश्री अनीता जी है, सुश्री नेहा जी है, सभी को मैं अभिवादन करती हूँ। और ये अभी के जो जिन्होंने इस सभी ने ये कुंभक क्रिया है जो वेट लॉस की, उसमें जो काम ये शामिल हुए हैं, उस सबका मैं अभिनंदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने जो संकल्प किया है, आपका उसका जरूर फायदा होगा। ये सब वजह में मेरा निवेदन समाप्त करती हूँ। अभी सभी प्रशिक्षणार्थियों को फिर एक बार अभिनंदन और मकर संक्रांति एवं उत्तरायण को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Jyoti ma'am, for joining us. Now I would request Manjunath sir to please share his journey of Ameda. सर आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, मंजुनाथ सर। ಈ ತುಮಕೂರು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ. Can we just Manjunath sir, are you there? मंजुनाथ सर, थोड़ा सा अंधेरा है तो आप थोड़ा लाइट में जा सकते हैं क्या? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा आप गाड़ी में हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मैं ट्रैवल में हूँ, इसलिए ऐसा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं मुझे समझ आया, आप गाड़ी में हैं। Yes, Manjunath sir, you can continue. हाँ मैडम, मैं 13 दिसंबर में ज्वाइन हुआ हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सर, या वी कैन हियर यू। हेलो मैडम। हाँ बोलिए सर। मैं 13 दिसंबर ज्वाइन हुआ था। मेरा वेट तो 1.5 वेट कम हुआ है मैडम। अच्छा
I think there is some problem in his network connection as well. So we will continue the webinar. And so there are some questions. Shama ma'am, Shama Vivek Mohta. So overweight and knee pain, again knee pain and overweight is connected. We all know that. कि जैसे ही वेट बढ़ता है तो नी अपना वेट लेता है सारा बॉडी का वेट. तो ऑब्वियसली अगर वेट ज्यादा है तो नी पेन तो invariably will happen. So sir, if you join this Ameda program, your weight will also reduce and eventually the knee pain will also subside. Okay, Alka Singh ma'am talks about lymphedema, cellulitis, BP. So lymphedema, of course, it's the concern with the lymphatic circulation. तो जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए वी हैव इम्पोर्टेंट लिम्फ्स व्हिच इज अगेन. तो वो जब आप कुंभक करते हैं एंड यू वर्क ऑन योर इंटरनल सिस्टम तो कुछ कुछ क्रियाएं स्वामी जी ऐसा बताते हैं जिससे लिम्फेटिक सर्कुलेशन में हेल्प होता है एंड अल्टीमेटली लिम्फोडीमिया और आपका बीपी ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो इन अ वे रिलेटेड टू योर weight, so that also normalizes. Okay. Chandana Chatterjee, need to reduce weight and relief from joint pain and skin issues. So as I mentioned earlier also, weight and joint pain is related. As the weight increases, especially the knee pain, वो invariably बढ़ता ही है because the knee is a weight bearing joint and it takes your entire weight. And as far as the skin issues are concerned, that also ultimately whenever if your liver is not functioning properly or any kind of malfunction is happening within the body, it shows last on the skin. तो आपके अंदर अगर बहुत चीजें बिगड़ी हुई हैं तो वो स्किन पे लास्ट आता है. So you can understand, Chandana ma'am, what I'm trying to say is आप अमेदा के प्रोग्राम से अपने स्किन के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो और ऑफ कोर्स वेट एंड जॉइंट पेन तो होगा ही. Okay, let us go to the next question. Pooja ma'am, if you need an appointment for consultation, please leave your name, leave your number, and we will get back to you. Okay. Anuradha ma'am, 7 p.m. is not suitable for me. So ma'am, if you can leave your number, Anuradha ma'am, and then we'll get back to you. We can always tell you the other time when we start the other batch in the morning. Want to join morning session? Nina ma'am, can you please send us your number so that our Neha is going to get back to you? Is it a lifelong support? As Anil ji has already said in his presentation, हम आपको कभी नहीं छोड़ते हैं. जो भी हमसे जुड़ता है, we try to give the support for lifelong. और अगर आप पूछ रहे हैं कि कुंभक हमें lifelong करना पड़ेगा क्या? तो ये बात ऐसा है कि जब आपका वेट सही आ गया या आपका वेट मैनेज हो रहा है तो आप छोड़ सकते हो. बट इट्स लाइक अगर आपकी बॉडी में फिर चीजें बिगड़ी तो आपको फिर से कुंभक करना पड़े. ओके, भावना ददलानी मैम, जस्ट अ सेक. So Bhavna Dadlani ma'am is talking about hormonal changes, hormones. So obviously हम ladies का ऐसा है पूरा lifelong right from the time
we attain puberty, and post menopause, we go through a lot of hormonal imbalance. तो जब हम अमेदा करते हैं and we are working on the internal system, of course the hormones are also balanced. Anybody else with any questions? Ratna Goyal ma'am talks about diet restrictions and are the exercises hard? That's a good question, ma'am. See, we do not give you any diet restrictions per se. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ से हो या साउथ से हो, तो जिसका जो भी खाने का तरीका है, वी जस्ट गिव यू डाइट पर्सपेक्टिव्स. वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू आप दूध छोड़ दो, अभी आप कुछ और छोड़ दो. ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं बोलते. स्वामी जी जस्ट बोलते हैं बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन डाइट. We just give you perspectives as to what you should include in your food. ये सब diet perspectives हम लोग देते हैं. And as far as the exercises being hard, वो depend करता है आप hard किसको बोलते हो. ठीक है. So exercises इसमें breathing है and of course movements are going to be there क्योंकि ये weight घटाने की program है. Okay. Anybody from the participants who would like to ask their question, please do so. You can unmute yourself and raise your hands, and one by one you can ask your questions. Anybody from the Good evening, participants? madam. Good Yeah. evening. Yeah, can you please differentiate between the Ashtanga Chikitsa and the Sameda? Okay. So Ashtang Chikitsa focuses on the neuromuscular health issues, right? And when we talk about Ameda, it is focusing on the weight issues. So that is the primary difference between Ashtang Chikitsa and the Ameda program. And of course, the kriyas that we do are also different because हमारा target अभी Ameda में है weight और उधर है neuromuscular health issues. So that's a deeper and a lengthier program because we are covering a lot of things under the same umbrella. The neuro issues as well as the musculoskeletal issues. Because, madam, I want to also know that if I want to cover both these things, is it right to do Ashtanga Chikitsa or only this Sameda? So that depends on what problems you have. Which is a bigger perspective, like which covers more, like. No, sir, you need to tell me what are your problems. आपके problems क्या क्या हैं? एक तो Then है I'll be वेट able to घटाने का suggest. है, एक Weight एक तो है घटाने वेट का है. घटाने का, एंड दूसरा जो ठीक है. है जो जैसे हम नीस पेन ऑस्टो आर्थराइटिस है जो नीस और पेन्स का है, तो उसमें वो है इसलिए. तो I feel you should do Ashtang Chikitsa. Yes. Because Okay. osteoarthritis जब आपको है ना, तो it would be suggestive that you do Ashtang Chikitsa. आप वही प्रोग्राम करिए, 2 प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करिए, उससे ही आपको फायदा पड़ेगा. अच्छा, कुंभक इसमें under what are the like chapters like modules like कुंभक, तो it is common in both this, madam. Yeah, so we have different models here. So silver, gold, platinum. So the thing is where we are, focusing on different kriyas other than the Kumbhak therapy part. As you correctly said, Kumbhak therapy तो होना ही है. उसके अलावा हम लोग weight से related we do make you all do some movements, which is very different from what we are doing in Ashtanga Chikitsa. Okay, because to reduce the pains, and I came to understand that because osteoarthritis is there, which we have to heal on. It's time-taking process, and also at the same time, when you are suffering with some pains, so weight is also some issue. So weight घटा के फिर वो करने से कैसा होगा? What is your suggestion? वेट घटा के आप फिर उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, राइट? हाँ.
बिकॉज अभी जब चलने के टाइम में वजन की वजह से आपको जब दर्द लग रहा है, अगर वेट घटाने के बाद वो करने से और कुछ फायदा है क्या? सो सर जस्ट आउट एक्चुअली ऑफ, देखिए तो दोनों दोनों चीज इंटर रिलेटेड है। यस आई आपका अंडरस्टैंड, वेट और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, यस और आई यस वुड से द एग्जैक्टली, नी पेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ बेसिकली डिजेनरेटिव डिजीज, यस राइट? एग्जैक्टली, तो ये जो डिजीज है दोनों, तो आप अगर चाहें तो आप अष्टांग चिकित्सा पहले कर सकते हैं, या फिर अमेधा, अगर इफ यू वांट टू फोकस मोर ऑन योर वेट, then you can do is vice versa. You can do Ameda first and then work on your neuromuscular health issues, as you which correctly can, said. madam, yeah, which so if I want to one by one after one, if I want to go for that, what Sir, is the, I actually, mean, like, Swami ji says कि आप जो भी प्रोग्राम करते हैं ना, अभी उसको ही आप फोकस करें। जैसे अगर आपको अमेदा करना है तो आप अमेदा ही करिए, उसको 6 महीने प्रैक्टिस करिए। अच्छा, सो वी okay, शुड नॉट जंप ऑन वन प्रोग्राम टू द अदर, ऐसा नहीं okay, करना है। आप जो okay. भी करते हैं वो अच्छे से करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा उससे। No, what actually I want to ask you is, if I want to cover one after another, okay, as you rightly told, 6 months after other one. So, is there any, like silver, gold, something? Can I take at once so that after this I can do that in the same this thing structure, fee structure, Sir, whatever is you there? have to do the entire program, whether it is Ameda, whether it is अष्टांग चिकित्सा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक जगह से एक मैंने ले लिया, दूसरे जगह से दूसरा ले लिया। आई होप आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली। तो आपको जो भी प्रोग्राम करना है, जितने मॉड्यूल्स हैं हमारे, वो अमेदा में हो, अष्टांग में हो, आपको पूरा पूरा करना है, Mr. क्योंकि Raju, let आधा me, अधूरा करके आपको फायदा नहीं होगा। Other नहीं पूछता Mr. madam. I want to ask the fee structure for both at a time so that for the year long I will pay, and so that I will permanent member, like after this, like that. So, sir, pay for one program, do that Okay. program, and then we will see about the I next have program. the confidence in your Swamiji's and all that. Thank you so much, sir. That's But what yes, I would again like to tell you is, आप एक प्रोग्राम का ही फीस दीजिए, yes, I ठीक got है? it. Okay, दूसरा I दूसरा got that. प्रोग्राम आप तब आप उसकी फीस दीजिए ना। ठीक है, no problem. Thank you so much. That's great. ठीक You है। are very good, mentor like me for me. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes, Amrita ma'am, you've raised your hand. Please Thank unmute you. yourself. Yes. Thank you. I've understood the entire thing, but my I've also paid for the program. I don't have any questions pertaining to the program. I just have one thing that could be a conflict on 20th, because we have, I think, Thursday, the coming Thursday, and then Saturday class. I'm interested in the January classes, 7 p.m. Okay. So you are saying 20th, it would not be possible for you. That's what you're Yes, trying to say? I still don't know. There's some tentative thing happening. So what if I miss a Okay. live class? Just So one the thing is, initially. there is no worries about that. As Anilji was saying in his presentation also, if you miss a class, you are anyway getting the recording and the Right. PDFs are with you, because it's Hmm. not possible for anybody to, not miss even a single class, Correct. because we all have a set priorities and problems or whatever be it. So आप recorded session देख लो, and next class you can ask the mentor and she'll answer you, or you can ask in the WhatsApp group itself also. Done. Thanks. Okay, thank you. Anybody else from the participants? Please do not hesitate. Whatever questions you have in mind, be free to ask it. क्योंकि Hello. आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो Can I ask one आप- question, please? yes, please do. Yeah. Sneha The ma'am. thing is I like to do pranayam, but as breathing exercises, but I normally face a problem like I feel giddy when I do it. So You person normally like me, face a problem in breathing. I feel giddy. Yeah. When I do pranayams or anything, breathing exercises, I get giddiness. So in that case, will I able to Giddiness. do this? Yeah. Okay. Yeah.
So the thing is, see, when you join the program, then our mentors are going to see what is happening to you, and then we will recommend accordingly. Because the process is, because you would have to do the breathing exercise. It will be a slow process, and maybe you will take some more time. That's the only thing. Okay, fine. Thank you very much. Thank you. Anybody else? So, Hansa Nandu ma'am, you can ask your question, please. Ma'am, you need to unmute yourself, please. आप unmute कर लीजिए. हाँ मैम. अगर मल्टीपल केसेस है, हाइपोथायराइड भी है, नी पेन है, वेट ज्यादा है, स्लीप एपेनिया है, तो सब में कैसे काम आएगा? सब में ही काम इसलिए आएगा क्योंकि जब आप इंटरनल सिस्टम पे काम करते हो, ठीक है ना, अभी आपका थायराइड है तो थायराइड से आपका वेट का रिलेशन है, ठीक है, और जब आपका थायराइड एक मेन ग्लैंड है अपने बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड का जब मैल फंक्शन होता है तो वेट बढ़ता ही बढ़ता है. जब वेट बढ़ेगा तो आपको ब्रेथलेसनेस भी होगा और स्लीप एपनिया भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, ठीक है. नी पेन भी आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उससे नी पेन रिलेटेड है. तो ये पूरा विशेष सर्कल है. देखिए, एक से दूसरा चीज जुड़ा हुआ है. तो जब आप एक प्रोग्राम करते हो वेट लॉस के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपके इंटरनल सिस्टम पे जब काम होता है तो ऑटोमेटिकली सब चीजें सुधरने लगेंगी ना. ओके. रेवती मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. रेवती राजा मैम. Yeah, actually, yeah, I just want to know, like, this program will increase the immunity of the body. So whether I can suggest for my kid taking up, she's 10 years old now. Can she take any of the practices from No, ma'am, from we are so this? sorry. This program is not for children. We have our sister concern, which takes up children for these breathing exercises. So our program is not meant for children at all. It's only 16 and above. Okay. Thank you. Thank you. Anybody else from the participants? So Anilji, I think we can close the session. Yes. Since none of the participants have any questions. So thank you so much to all the participants for patiently waiting, and I hope we've tried to answer all the questions as much as possible. अभी भी आपके कोई questions अगर रह गए हैं या आपको याद नहीं है तो आप प्लीज वेबिनार ग्रुप में लिखिए और हम लोग जल्द से जल्द उसको आंसर करेंगे. So with that, signing off, Rachna. Thank you so much and stay well, stay happy. Namaste.